Hello students, welcome to the ninth session on chapter number 6 triangles. In this video, we'll be proving Pythagoras theorem, the converse of Pythagoras theorem and doing question number 1 to question number 3 of exercise 6.5. So starting with Pythagoras theorem, it states that in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. So if triangle ABC is right angled at angle B, then AB square plus BC square will be equal to square of the hypotenuse, which is AC square. So here we are given that triangle ABC is right angled at B, and we need to prove that AB square plus BC square is equal to AC square. Okay, so for this we need to do some construction. Draw BD perpendicular to AC. So हमने यहाँ पे B से AC के ऊपर एक perpendicular ड्रॉप किया BD. Proof. So what we'll do here is find the value of AB square, then BC square, and then add both the equations. Okay, so how we'll find the value of AB square? तो हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स चूज करने हैं जिसमें दोनों में साइड ए बी आती हो और उनको हम सिमिलर करेंगे. सो एक साइड ए बी आ रही है ट्राइंगल ए बी डी में और एक आ रही है ए बी सी में. सो ए बी डी और ए बी सी को हमें सिमिलर करना है. सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी. सो हेयर angle A is equal to angle A. This is common. And angle ABC is equal to angle ADB, each 90 degrees. So two angles of these triangles are equal. Therefore, by double A similarity, triangle ABC will be similar to triangle ADB. दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए. And if two triangles are similar, then their sides are proportional. That is, AB upon AD will be equal to DB. AB upon AD will be equal to BC upon DB will be equal to AC upon AB, and this is by CPST. Okay, so we'll consider the first part and the third part, because from here we can find the value of AB square. So when we cross multiply, we'll get AB square is equal to AD multiplied by AC. Let us suppose this is the first equation. Now we'll find BC square. So we'll consider triangle BDC and ABC, because side BC is there in both the triangles. So in triangle ABC and triangle BDC, here angle C is equal to angle C. This is common. And angle ABC is equal to angle BDC, each 90 degrees. Therefore, by double A similarity, triangle ABC will be similar to triangle BDC. Similar हो गया. So sides proportional होंगी. That is, AB upon BD will be equal to BC upon DC will be equal to AC upon BC. और अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कंसिडर करें, इसका रीजन भी बाय CPST है. और अगर हम लास्ट टू को कंसिडर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यू विल गेट BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाइड बाय DC. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. और अब इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड किया. सो एडिंग
इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर will be equal to AD into AC and AC into DC. AD into AC and AC into DC. AC multiplied by DC. So we can take out AC as common. You will be left with AD plus DC. और फिगर के अकॉर्डिंग AD plus DC क्या है? This is AD, this is DC. If we add AD and DC, it will be AC. So in place of AD plus DC, I can write AC. So AC into AC, this is AC square. Therefore, AB square plus BC square is equal to AC square. और यही चीज हमें प्रूव करनी थी. This is Pythagoras theorem. Okay. Moving on to the next theorem, converse of Pythagoras theorem. It states that in a triangle, if square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides, एक साइड के स्क्वायर का सम, एक साइड का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल. सो अगर इसमें देखें, अगर हमें गिवन है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड्स ए बी और बी सी के स्क्वायर्स के सम के बराबर है. तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट वाली साइड थी दैट इज ए सी, इसके ऑपोजिट वाला एंगल विच इज बी विल बी 90 डिग्रीज. ये हमें प्रूव करना. सो गिवन है यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी जिसमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दिस इज गिवन एंड वी नीड टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ओके. कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेपरेट ट्राइंगल बनाएंगे. ठीक है. ट्राइंगल किस तरीके से? ट्राइंगल हमने बनाया पी क्यू आर सच दैट, या कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड एक चीज एक्स्ट्रा लेनी है, एंगल क्यू को हम 90 डिग्रीज लेंगे. इसमें दो साइड्स को इक्वल रखिए और एक कंटेनिंग एंगल हमने क्यू 90 रख लिया. अब देखते हैं प्रूफ कैसे होगा. ट्राइंगल पी क्यू आर is a right triangle, right angled at Q. तो ऐसे में अगर right angled at Q है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. Therefore PQ square plus QR square is equal to PR square. This is by Pythagoras theorem. Converse of Pythagoras यूज कर प्रूव कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. अब PQ जो था वो AB के इक्वल है. सो इन प्लेस ऑफ PQ स्क्वायर आई कैन राइट AB स्क्वायर, एंड QR BC के इक्वल है तो QR की जगह BC लिख सकते हैं. तो दिस इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर बिकॉज AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR. ओके. ऑल्सो गिवन क्या था? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दिस वॉज गिवन. तो अगर हम इन दोनों को कंसिडर करें, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दोनों AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है. सो इसका मतलब क्या हुआ? AC स्क्वायर PR स्क्वायर के इक्वल हो गया, और आई कैन से AC इज इक्वल टू PR. तो AB PQ के बराबर था, BC QR के बराबर था, और अब हमने प्रूव कर दिया AC जो है वो PR के बराबर है. सो नाउ AB इज इक्वल टू PQ, AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, BC इज इक्वल टू QR, एंड नाउ AC इज इक्वल टू PR. ये दोनों तो बाई कंस्ट्रक्शन थे और ये अभी प्रूव किया. Therefore by SSS congruency, triangle ABC
विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? PQR के, PQR। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है दैट इज देयरफॉर एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT। तो इसका मतलब अगर एंगल Q 90 था तो एंगल B भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्रीज। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। क्लियर? ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 1। Sides of triangle are given below. Determine which of these are right triangles. In case of a right triangle, write the length of the hypotenuse. तो right triangle है या नहीं है ये कैसे चेक करेंगे? By converse of Pythagoras theorem. तो हमने क्या किया? Sides को assume कर लिया. Let A is equal to 7 centimeter, B is equal to 24 centimeter, and C is equal to 25 centimeter. अगर दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा तो ये राइट ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। और दो साइड्स कौन सी लेंगे जिनका स्क्वायर करना है? छोटी वाली साइड्स। तो हेयर विल टेक A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो A इज 7 का स्क्वायर, B इज 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज 49, 24 स्क्वायर इज 576, and 49 plus 576 is 625, which is 25 का स्क्वायर, और I can say this is equal to C स्क्वायर। तो दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज अ राइट ट्राइंगल। और अगर ये राइट ट्राइंगल है तो हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ बतानी है, एंड हाइपोटेन्यूज विल बी जो सबसे बड़ी साइड है विच इज C, और आई कैन से 25 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट। Let A is equal to 3 centimeter, B is equal to 6 centimeter, and C is equal to 8 centimeter. चेंज भी कर सकते हैं, ABC ऐसे ले सकते हैं। हमेशा स्क्वायर दो छोटी साइड्स का करना है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किया, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 36 विच इज 45। और ये C स्क्वायर के बराबर नहीं है, क्योंकि C स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर 64 आएगा, इक्वल नहीं आ रहा। देयरफॉर इट इज नॉट अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल नहीं है, और राइट ट्राइंगल नहीं है तो हाइपोटेन्यूज भी नहीं निकालनी। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। 50, 80 and 100. So let A is equal to 50 centimeter, B is equal to 80 centimeter, and C is equal to 100 centimeter. So A square plus B square कितना आएगा? 50 square plus 80 square, 2500 plus 6400, ये हो गया 8900, जो कि C स्क्वायर के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू C स्क्वायर। इसका मतलब इट इज नॉट अ राइट triangle. Okay, fourth part. Let A is equal to 12 centimeter, B is equal to 5 centimeter, and C is 13 centimeter. सेम चीज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज 144, एंड 5 स्क्वायर इज 25 विच इज 169, जो कि C स्क्वायर के बराबर है। तो देयरफॉर इट इज अ राइट ट्राइंगल। और हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी? जो सबसे बड़ी साइड है विच इज 13 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P। तो राइट एंगल्ड एट P ये दे रखा है। M इज द पॉइंट ऑन QR। M QR के ऊपर पॉइंट है सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR, शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। वेरी इजी क्वेश्चन। गिवन है यहाँ पे ट्राइंगल PQR जहाँ पे एंगल P 90 डिग्रीज है, एंड PM इज परपेंडिकुलर टू QR। दिस इज गिवन। और हमें प्रूव करना है
पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो हमें करना क्या है, अगर हमें पी एम स्क्वायर चाहिए तो हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है जिसमें दोनों में साइड पी एम आती हो। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3। सो एक तो मुझे 90 90 दे ही रखा है, परपेंडिकुलर था तो ये तो 90 90 हो गया। क्योंकि अब ये एक और अगर एंगल हमें मिल जाता तो हमारा काम हो जाता, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते। तो अभी ये सिमिलर है नहीं डायरेक्टली, तो हमें दूसरा वाला एंगल करना पड़ेगा इक्वल। एक तो इक्वल दे रखा है, सेकंड हमें करना है। सो इन ट्राइंगल पी आर एम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री, ये जो है 180 डिग्री के बराबर है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा, 90 डिग्री। ये 90 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 90 डिग्रीज। ओके, देन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो 2 प्लस 3 90 है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री, बिकॉज एंगल पी जो था वो पूरा 90 डिग्री हमें दे रखा था। क्वेश्चन में गिवन एंगल पी इज 90। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, since both of them are equal to 90 degrees, therefore angle 1 plus angle 2 is equal to angle 2 plus angle 3। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो you will get angle 1 is equal to angle 3। तो angle 1 angle 3 के इक्वल आ गया। angle 1 ये एंगल is equal to angle 3। सो एक 90 90 हमें ऑलरेडी दे ही रखा था, और 1 और 3 अभी हमने इक्वल कर दिया। सो इन ट्राइंगल पी आर एम and triangle QPM, QPM, angle 1 is equal to angle 3, अभी प्रूव किया, and angle PMR is equal to angle QMP, this is each 90 degrees, therefore by double A similarity triangle PRM is similar to triangle QPM। सिमिलर हो गए तो इसका मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। PR अपॉन QP is equal to RM upon PM is equal to PM upon QM. This is by CPST। और इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाइड बाय MR। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। गॉट इट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलर ही अप्रोच है इसके अंदर भी। तो गिवन है यहाँ पे ट्राइंगल ABD जिसमें एंगल A 90 डिग्रीज है, ये राइट एंगल एट A ये दे रखा है, एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD, दिस इज गिवन। ओके, तो सबसे पहले हमें चाहिए AB स्क्वायर। प्रूव वाले पार्ट्स हैं। टू प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, सेकेंड AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, थर्ड पार्ट AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। प्रूफ। सो अगर हमें AB स्क्वायर चाहिए तो हम ऐसे दो ट्राइंगल्स लेंगे जिसमें AB आता हो। सो एक हो गया ABC और एक हो गया ABD। एक तो एंगल B कॉमन आ रहा है इसमें, और एक 90 90 हो गया, तो डबल ए से सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल्स। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, तो ABC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा बनेगा? ABC के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल विल बी DBA। DBA
ठीक है, क्यों? एंगल बी एक तो कॉमन आ गया, एंड एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ईच 90 degrees. Therefore, by double A similarity, triangle ABC will be similar to triangle DBA. और जब सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. AB अपॉन DB इज इक्वल टू BC अपॉन BA इज इक्वल टू AC अपॉन DA बाय CPST. और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट AB स्क्वायर is equal to BC into BD. This is our first part. Next we have to prove AC square. तो AC square मतलब ये इसका स्क्वायर आ रहा है तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा. तो वही सेम अप्रोच जो हमने पहले किया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री. जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 90 दे रखा है. ये ASP ऑफ ट्राइंगल ADC इससे निकला है. एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to 90 degree because angle BAD is 90 degrees. So therefore angle 1 plus angle 2 will be equal to angle 2 plus angle 3. 2 से 2 cancel हो गया तो you will get angle 1 is equal to angle 3. अब similar कर दो, angle 1 और angle 3 ये equal आ रहे हैं and 90 90. So in triangle ACB एंड ट्राइंगल ACB कौन सा लिया, इक्वल 90 और खाली, तो यहाँ पे इक्वल DCA. एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCA, ईच 90 डिग्रीज. एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1. ये अभी प्रूव किया. देयरफॉर बाय double A similarity, triangle ACB and DCA will be similar. Triangle ACB will be similar to triangle DCA. So ratios क्या बनेंगी, AC upon DC, CB upon CA is equal to AB upon DA by CPST. जब इसको लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो you will get AC square is equal to CB into CD. This is our second part. AC square is CB into CD. Last is AD square. तो हमें कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं, ABD और ACD. नेमिंग क्या रहेगी इसके अंदर, इरेज कर देते हैं पहले. So this was angle 3, this is angle 2. तो AD स्क्वायर चाहिए तो नाम ले लिया सबसे पहले हमने, सपोज ABD. सो इन ट्राइंगल ABD, तो ABD की कॉरेस्पॉन्डिंग नाम क्या आएगा, तो 90 खाली और कॉमन, तो 90 खाली कॉमन CAD एंड ट्राइंगल CAD. पहले 90 90 वाले एंगल्स लिख लेते हैं. तो BAD और ACD, एंगल BAD is equal to angle ACD, each 90 degrees, and angle D is equal to angle D common. Therefore by double A similarity, triangle ABD will be similar to triangle CAD. Similar हो गया तो sides proportional, AB upon CA is equal to BD upon AD is equal to AD upon CD by CPST. और जब इसको लेके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD.
and this is the third part. ओके सो जिसका भी स्क्वायर चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे ए बी स्क्वायर चाहिए था तो ऐसे दो ट्राइंगल्स लेंगे जिसमें दोनों में साइड ए बी आती हो, ए सी स्क्वायर के लिए दो ट्राइंगल्स जिसमें साइड ए सी आती हो, ए डी स्क्वायर के लिए वो दो ट्राइंगल्स जिसमें साइड ए डी आती हो। उनको सिमिलर करेंगे तो साइड्स की रेशो के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके बहुत इजीली ये रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ट्राइंगल की नेमिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, करेक्ट नेमिंग लिखोगे तो ही ये रिजल्ट आ पाएगा। Okay, so with this we have completed today's video. We'll continue from question number 4 in the next class. Thank you so much.